Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? In our last lecture, we finished this chapter and this chapter is enzymes. This is your chapter number 3. In last lecture, we discussed our very important factor that affect the enzyme's activity, and that was enzyme concentration and substrate concentration, and we studied that how these two concentrations affect the rate of the reaction. Today's lecture is very short. We'll discuss just the summary of this chapter. We have finished this chapter, and the summary of this chapter is the revision of the chapter is very much important. In this chapter, we learn about enzymes. Now, what are enzymes? Enzymes are biological catalysts, which are mainly made of protein. They speed up the rate of chemical reactions without themselves being actually chemically changed at the end of the reactions. ठीक हो गया? Every enzyme have a specific function. They have specific characteristics. They have their mode of action, and we can classify the enzymes into different classes. We have discussed all these things one by one in this chapter. Functions क्या हैं enzymes के? These enzymes digest large food molecules into smaller molecules या break down food substances in cells to release energy. या और क्या function होता है इसका? They build up or synthesize complex substances and break down poisonous substances in cells. These are all the actions, all the functions which enzymes perform. These all activities are taking place in the body of the living organisms. Collectively इन्हें हम क्या कहते हैं? These are the metabolic activities या metabolism of the living organisms. ठीक है, कोई भी metabolic activity है living organisms के अंदर that is catalyzed by the enzymes. Enzymes की absence में ये reactions होना या ये metabolic activities जो होना, this is near to impossible. Characteristics of enzymes क्या हैं? They speed up chemical reactions. They are required in small amounts, are highly specific, and work best at an optimum temperature and pH. And they catalyze reversible reactions हो गया. ठीक है. Mode of action क्या है इसका? कि enzyme provide an alternative pathway with lower activation energy required for the reaction. मतलब क्या है इसका? कि enzyme रिएक्शन में जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसकी रिक्वायर है वो उसकी रिक्वायरमेंट को लो कर देते हैं, यानी दे लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन. सो रिएक्शन जल्दी से हो जाता है और रैपिडली होकर जल्दी एंड अप होकर तो प्रोडक्ट बना देता है ज़्यादा सारे. Enzymes interact with the substrate according to the lock and key hypothesis to form an enzyme substrate complex. अब अगर enzyme ने substrate को product में convert करना है तो उसके लिए पहला step क्या है कि enzyme substrate complex की formation होगी. और ये formation किस रूल के अकॉर्डिंग होगी या किस थेरी के अकॉर्डिंग होगी? लॉक एंड की मॉडल कि एवरी स्पेसिफिक एंजाइम के लिए कोई एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो कि उसकी एक्टिव साइट के साथ आकर स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद फिर ये सबस्ट्रेट जो है ये अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. क्लासेस ऑफ एंजाइम्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन कैटालाइज्ड. मैंने आपको बताया था कि हम एंजाइम्स को डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं. आपकी बुक में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर कैटालाइजिंग. और रिएक्शन से हमने पढ़ा था हाइड्रोलेसिस भी होते हैं, ऑक्सीडेसिस भी होते हैं, रिडक्टेसिस भी होते हैं. यहाँ इन्होंने हाइड्रोलेसिस की एग्जांपल्स दी हुई हैं, कार्बोहाइड्रेसिस, प्रोटीएसिस एंड लाइपेसिस. In the end of this chapter, we discussed the factors that affect the enzymatic activity. इन factors को हम कहते हैं these are the limiting factors. और limiting factors क्या होते हैं? Factors that directly affect the rate at which a chemical reaction occurs if their quantity is changed. यानी ये वो factors हैं जो कि किसी भी chemical reaction के rate को affect करते हैं जब हम इन लिमिटिंग फैक्टर्स की क्वांटिटीज़ को चेंज करते हैं, यानी कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं. कम करेंगे तो रेट स्लो हो जाएगा, ज़्यादा करेंगे तो रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा, वो उसका इंक्रीज़ कर जाएगा.
the value of a limiting factor must be increased in order to increase the rate of the reaction. Okay, नेक्स्ट है जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो एक टेम्परेचर है और एक pH है. इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन until optimum temperature is reached. Every enzyme has an optimum pH. Increasing or decreasing the pH from the optimum decreases enzyme activity. यानी अगर optimum temperature है तो बेस्ट परफॉर्म करेगा एंजाइम, अगर ऑप्टिमम pH है तो अपना बेस्ट देगा एंजाइम और मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा. अगर टेम्परेचर लो या हाई हो जाए या अगर pH लो या हाई हो जाए तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट करती है. और अगर बहुत ज़्यादा चेंज होगा pH में और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो फिर क्या हो जाता है, फिर हो जाती है डीनेचरेशन. ठीक है, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस एट एक्सट्रीम्स ऑफ pH and at very high temperature. ठीक हो गया बच्चों. This is the summary of the chapter and we have discussed all these things in the chapter in very detail and I hope कि आपको अब एक each and every जो concept है इसका that is very clear to you. अच्छा जी, नेक्स्ट देखें हम एक फ्लो चार्ट सा बना हुआ है of this chapter and this flow chart is very much important. आप इसको एक क्विक गो थ्रू होने के लिए, एक क्विक रिव्यू लेने के लिए चैप्टर का आप इस फ्लो चार्ट को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एंजाइम्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे आर प्रोटीन इन नेचर. ठीक हो गया. फंक्शन में क्या है इनका, ये एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स एंड दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट जब करते हैं तो दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स by lock and key hypothesis or induced fit model. An enzyme substrate complex is sometimes formed with the help of the coenzymes. ठीक है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए समटाइम कोएंजाइम्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं. एंड द स्पीड अप रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. ठीक हो गया. जब लॉक एंड की हाइपोथेसिस या इंड्यूस्ड फिट मॉडल के ज़रिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो मॉडल्स हैं ये क्या करते हैं, दे गिव अस एन आइडिया अबाउट द स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंजाइम्स टू सबस्ट्रेट टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. ठीक हो गया. अब जब रेट ऑफ रिएक्शन को ये फास्ट कर रहे हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं. इंट्रासेलुलर एंजाइम्स भी होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स भी होते हैं. इंट्रासेलुलर एंजाइम्स का मतलब क्या है, दीज आर द एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड इनसाइड द सेल. यानी जब राइबोसोम्स ने सेल के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन या हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस कर लिया. ठीक है, अब सेल के अंदर एंजाइम सिंथेसाइज हो गए हैं. ये एंजाइम्स टू वेज में यूज़ हो सकते हैं. कैसे टू वेज में यूज़ हो सकते हैं मैं बताती हूँ आपको. ये देखें, दिस इज़ अ सेल न्यूक्लियस, ये राइबोसोम्स हैं. ठीक है, ऑल अदर ऑर्गेनल्स आई एम नॉट ड्राइंग ऑन दिस डायग्राम क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब इन राइबोसोम्स ने प्रोटीन प्रोड्यूस की एंड दिस प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सम टाइम ये प्रोटीन जो है, जैसे कि आपने सेल की जब हम ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, तो ये प्रोटीन जो राइबोसोम्स बनाते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए गोल्जी बॉडीज़ तक पहुंचाई जाती है और फिर स्मॉल पैकेट्स बन जाते हैं ऐसे वेजिकल्स. इन वेजिकल्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द लाइजोसोम्स. ठीक है. अब जो एंजाइम इन लाइजोसोम्स के अंदर स्टोर हैं, दीज एंजाइम्स कैन बी यूज्ड इन टू वेज. वो टू वेज क्या हैं कि या ये यूज़ होंगे इंट्रा सेलुलर, इसका मतलब है इनसाइड द सेल, और या ये यूज़ होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर.
यानी आउटसाइड द सेल। ठीक है, इनसाइड द सेल के लिए क्या है कि इस सेल ने कोई फूड वैक्यूल जो है उसको इंगल्फ किया है फेगोसाइटोसिस के ज़रिए। अब उस फूड के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वेजिकल्स जाके इनसे फ्यूज़ हो जाएंगे और एंजाइम्स इसके अंदर पोर करके इस फूड के पार्टिकल को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, और या दूसरा तरीका क्या है कि ये वेजिकल्स आकर सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़ करने के बाद अपना जो भी मटेरियल है उसको सेल के बाहर रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, अब जब ये सेल के बाहर ये मटेरियल रिलीज़ हो गया तो अब सेल के बाहर जो भी मटेरियल है, कोई फूड है या जो भी जिसकी डाइजेशन रिक्वायर्ड है या कोई और केमिकल रिएक्शन जो कि आउटसाइड द सेल अकर हो रहा है उसको कैटालाइज करना है, तो ये एंजाइम बाहर यूज़ होते हैं। सो दिस यूजेज इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड दिस यूजेज इज़ इंट्रासेलुलर। ठीक है, आपको समझ आ गई। अब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन हैं वो दो तरह के एंजाइम्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, या तो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल में डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स आ जाते हैं, कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक का एंजाइम है, स्टमक के एंजाइम्स हैं, तो वो स्टमक की जो वॉल है इंटरनल लाइनिंग उसके सेल्स एंजाइम प्रोड्यूस करके तो उसको आउटसाइड रिलीज़ कर देते हैं इनटू द स्टमक कैविटी, और वहाँ पर फिर जो हमने फूड इंजेस्ट की है उसकी डाइजेशन हो जाती है। इंट्रासेलुलर में एंजाइम्स की एग्जांपल्स में ऑक्सीडेजेस एंड रिडक्टेजेस आते हैं, या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आ जाते हैं, या फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्योंकि सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है तो ये सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं लाइपेजेस। These lipases digest lipid to form fatty acid and glycerol. इसके अलावा प्रोटीएजेस आ जाते हैं। These digest protein to form amino acids. और फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेजेस आ जाते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को टू फॉर्म सिंपल शुगर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, pH, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम कंसंट्रेशन। क्योंकि ये प्रोटीन्स हैं एंजाइम्स, तो दीज कैन बी इनएक्टिवेटेड एट लो टेम्परेचर एंड दीज कैन बी डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर एंड दीज कैन आल्सो बी डीनेचर्ड एट एक्सट्रीम pH। एक्सट्रीम pH का मतलब है कि जो भी उसकी ऑप्टिमम pH है एंजाइम की, उससे या तो pH बहुत कम हो गई है या उसकी ऑप्टिमम pH से pH बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है बेटा, ओके। हमने इस चैप्टर को रिव्यू कर लिया है, सारा रिकॉल कर लिया है हमने इसको। अब आपने क्या करना है कि इस चैप्टर को कम्प्लीटली एक दफ़ा गो थ्रू होना है। ठीक है, इन द एंड देखें इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एंजाइम दी हुई है। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट commonly made of protein. They alter the rate of chemical reactions without themselves being chemically changed at the end of the reaction. पूरा चैप्टर रिवाइज करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज में से गो थ्रू होंगे एंड देन विल डू द MCQs, structured questions and essay type questions from our past paper book. सो हम देखेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है और हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कितने सक्सेसफुल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।